channel Alarical Garima and this is your girl Garima Singh and ये channel के आपको टॉपिक से पता चल चुका होगा कि हम सेशल्स की सारी ट्रिप का एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करने वाले हैं. सो ये चीज स्टार्ट करने से पहले let me introduce myself. My name is Garima. I already did that. मैं बेचारे को मौका नहीं दे रही. You introduce yourself, please. Hello guys, this is Ashutosh. My husband first time here आए हैं तो इनका प्लीज स्वागत करिए. ये चाहते थे कि हम दोनों साथ में ये जो सेशल्स का जो हमने ट्रिप किया, इंटरनेशनल ट्रिप जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान किया था फॉर आवर डॉटर्स बर्थडे, तो हम शेयर करें. एंड मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी. आप पीछे क्रिसमस ट्री देख ही रहे होंगे. सो हमने अभी अभी डेकोरेट किया है. आज 24 दिसंबर है. आई होप कल तक आपको 25 दिसंबर तक ये वीडियो मिल जाए. उसके बाद हमारे व्लॉग्स आएंगे 1 by 1. सो हमने सोचा पहले एक जिस्ट वीडियो बना लेते हैं. Regarding like what we did, how we planned everything, like we will be telling you how we started planning, how we executed it, and how the trip went. Yes. So हम चाहते हैं कि आपको सारा एक्सपीरियंस हम दें, क्योंकि हमें कोई भी अच्छा वीडियो जब हम सेशल्स की ट्रिप प्लान कर रहे थे यूट्यूब में नहीं मिला था. We searched many videos, then we gather information from small information from many videos. So we are thinking we can make a single video for you guys where you can which will be like one time video for you all. Yeah, and I got engaged again. Let me show off my rings. So एक बार इस आदमी को मैंने बता दिया था कि यार मेरे को किसी ने आज तक मील होके किसी ने प्रपोज नहीं किया, मतलब प्रपोज नहीं किया. So he did that after 9 years of marriage. Sorry, 9 years of our engagement, but it's worth the wait. Thank you. So coming to the point. So हम आपको इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीजें बताने वाले हैं. हम लोगों ने नोट्स बनाए because बहुत बड़ी लिस्ट है. So what is the flow? What will be the flow? So we will be telling you about the itinerary, then the flights, and the visa, how to take SIM card or everything related to that, accommodation, then our commute over there, like how we traveled, what we did. Then there are different activities for going there, like obviously if you're going to beach place, there will be activities related to that. So activities, then food, and most important expenses. So we will be telling you mostly like how we planned this trip and how we managed it in a budget. And obviously if you want to go for luxury, there's no limit for that, but if you want to go on a budget, then we are here for you. If you want to plan on a good budget, so this is the video for you. Watch till end. And last में मैं आपको सबसे important चीजें बताने वाली हूँ कि packaging not packaging, packing, sorry. Last में आपको मैं बताने वाली हूँ कि packing कैसे करनी है, वो important है. If you are especially if you are traveling with a toddler or a baby. सादा बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो हमें यूट्यूब चैनल में नहीं मिला सेशल्स रिलेटेड एक ही चीज सारी एक वीडियो में. सो just be with us in this video. Okay, so before we start, subscribe to our channel if you have not already subscribed. If yes, then do watch till end. Do like, share, and subscribe. And I think you will like this video. So without wasting your time, let's dive in. Guys, सेशल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका में आता है. एंड यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे है. एंड इतने सुंदर क्रिस्टल turquoise beautiful beaches I have ever seen in my life. मैं बाली भी गई थी पर इतने सुंदर बीचेस तो नहीं देखे थे. cleanest and less crowded. भाई आपको बाली, थाईलैंड और मोस्टली मलेशिया, सिंगापुर, हर जगह पे आप कहीं भी जाओ, मॉलदीव्स, आपको भर के क्राउड बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत क्राउडेड. और हमको ऐसी जगह जाना था जहाँ लेस क्राउड हो. सो बहुत कम क्राउड था वहाँ पे. बहुत पीसफुल रहा. इतना सुंदर कंट्री है कि आप हर किसी को एक बार तो जाना चाहिए. बट उसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग पसंद है ना, तो आपके लिए बेटर, बहुत अच्छा लगेगा आपको ड्राइव करके वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं, किसी को जल्दी नहीं है. आप रोड क्रॉस करने के लिए आप बस स्टेप रखोगे रोड पे, जो भी गाड़ियाँ आ रही होंगी वो रुक जाएंगी वहीं पे, आपको रोड क्रॉस करने देंगे. बीच व्यूज है, पूरे बीच के साइड में कोस्टल एरिया टाइप आपको पूरे रोड्स हैं. तो आपको मतलब ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि आपको ओवरटेक कर रहे हैं. अगर आप 30 पे भी चला रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 to 40 60 ऐसे ही रहता है. अगर आप 30 की स्पीड पे भी चला रहे हो तो आपके पीछे जो गाड़ी है वो आपके पीछे ही रहेंगी. तो मेरे को ड्राइविंग में बहुत अच्छा लगा
पीसफुल था, कोई ऐसा हॉर्न का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे, मतलब आपकी गाड़ी में हॉर्न रहेगा बट कोई बजाता कोई नहीं है, बजाने बजाता की ही नहीं, जरूरत ही हमने नहीं हॉर्न ही पड़ती। नहीं सुने, मतलब क्या हो गया भाई, कोई हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा? हम तो, बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हॉर्न बजाऊं क्या, बीइंग एन इंडियन, पर नहीं बजाया किसी ने, तो हमने भी नहीं बजाया। जो सेशल्स है वो सुंदर के साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी बहुत रिच है। ऑनेस्टली वहाँ पे इंडियन आपको टेम्पल भी मिलेगा ऑल्सो। आपको आगे मैंने शायद बताया हो, बट मैं जस्ट वांट टू टेल यू दैट पहले फ्रेंच ने यहाँ पे राज किया था काफी साल, फिर ब्रिटिश आए, इंग्लिश लोग, और उन्होंने राज किया। उस टाइम पे स्लेव्स इंडियंस होते थे, एंड फिर उनके जाने के बाद मोस्टली यहाँ पे चेन्नई एंड आपको केरला से मोस्टली मार्ट्स और जितने भी ग्रोसरी शॉप्स और बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ इन शॉर्ट, तो आपको दिखेंगे। और यहाँ की जो कोकोनट कोको द मेयर जो कोकोनट है, जो कि बहुत ही अद्भुत शेप का है, विच इज ऑफ वुमेन, शेप ऑफ वुमेन पटक, एंड सुनने में बहुत फनी लगता है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, पेल्विस शेप में। और दुनिया में सिर्फ एक ही आइलैंड सेशल्स में, प्रालीन में ये कोकोनट मिलता है, तो उसकी हिस्ट्री जानने में हमें बहुत अच्छा लगा। सो इट इज रिच इन हिस्ट्री ऑल्सो। सुंदर के साथ साथ हिस्ट्री भी बहुत रिच है, जिस मोटो से टेल यू। हम लोगों ने जो प्लानिंग जो है वो हमने, अराउंड 6 to 7 months पहले से स्टार्ट कर दिया था। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडवांस में प्लान करो। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। Planning is important. Impromptu is also okay, but if you're traveling in You need budget, more money for that. money, money. It is made up of many islands, total around like 115 or 117 islands, and out of those islands, there are three main islands, which is Mahe, which consists of the capital of the Seychelles, and then Pralin, and then Ladik. First, the biggest island is Mahi, जहाँ पे आप लैंड करते हो। मोस्टली फ्लाइट्स मोस्टली वहीं से होती हैं, तो एयरपोर्ट है मतलब वहाँ पे। एयरपोर्ट है वहाँ पे। देन प्रालीन जो मीडियम लेवल का है। Then Ladik, it's a small 5 by 5 kilometer radius island. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फ्लाइट्स, कि हमने फ्लाइट्स कहाँ से कराई, कैसे कराई और कितने दिन पहले कराई। So हमने start कर दिया था रिसर्च करना around 6 7 months back, as I told earlier. We have a direct flight from Mumbai to Seychelles, which is of 4.5 hours something, 4 hours 25 minutes or 4.5 hours approx. So that is direct flight. You have many other options, but this is the best and cheap option. Direct flight plus the cheapest one. The flight is of Air Seychelles only, and it costed us with three together around round trip costed us around 75K. मैंने 2 महीने पहले फ्लाइट टिकट्स देखे थे और वो मोर देन 115 और 130 थे 3 लोगों के, तो गुड डील आई गेस। Yes. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लाइट करा रहे हो तो आप एटलीस्ट, अगर आप 6 महीने पहले नहीं कर सकते तो 4 महीने पहले तो कराओ। मैंने अगस्त में करा लिए थे और दिसंबर के टिकट, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फ्लाइट में अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इस हम लोग स्ट्रॉलर नहीं ले गए थे, लेकिन अगर आपको ले जाना है स्ट्रॉलर तो ले जा सकते हो। हम सिर्फ कैरियर ले गए थे और वो काफ़ी मैनेजेबल था, मेरी बेटी 1 साल की है तो वो मैनेजेबल था। फ्लाइट में एयर सेशल्स के वो लोग खाना देते हैं वन टाइम, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ नहीं होगा तो आपको भूखे रहोगे, वो लोग खाना देते हैं आपको, प्रॉपर जूस एंड पानी वगैरह सब कुछ देते हैं, 4 घंटे में आप पहुंच। लेट्स टॉक अबाउट वीजा एंड सिम, और वो भी आशु बात करेगा इस बारे Okay, में। so once you book the flights, you get the tickets. With the tickets, you will see one thing is little mandatory, that you need to have travel authorization that needs to be filled properly, travel authorization form, and the link is open 1 month before. Like suppose you're traveling on 10th of December, so link will be open from 10th of November only. So once that is done open, you have to fill your details, passport, everything, photos, everything, and that is done. There's a minimal charges of 3,000 rupees for that travel authorization. And while filling that form, I came across two things. That one is SIM card, and I pre-booked the SIM card. I mean to say, for 7 days, it costed me around 2,000. So I'm just telling it in Indian rupees. So the charges while booking and doing everything will be in Seychelles rupees SCR, or it will be in euros. They accept this euros or SCR. And apart from that, I also took a medical insurance. When we will be filling this form, travel authorization form, you will have the option to select that insurance. So it costed me around 5,000. So total these three things costed me 10,000. इसमें मेरा travel authorization form हो गया, सिम कार्ड हो गया, एंड मेडिकल हो गया, एंड ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म मुझे शायद एक दिन में, नेक्स्ट डे या 2 दिन में आ गया था। एंड वीज़ा का ऐसा है कि इट इज़ ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल। सो आई थिंक एक एक महीने पहले ही वो फॉर्म भर सकते हो ना हाँ, एक वीजा महीने वाला। पहले फॉर्म भर सकते हैं वो वाला।
ट्रैवल ऑथराइजेशन वाला। उसकी लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक हम बॉक्स शेयर में। कर देंगे, बट एज सुन एज आल्सो यू बुक द फ्लाइट्स, by default you will be getting that link in your mail or in the ticket itself, but we'll be sharing the link. अगर आपके पास एयरटेल पोस्टपेड है तो there is one more offer from एयरटेल, आप it will cost around 3000 for 10 days, या फिर आप वहाँ पे जाके एक सिम ले सकते हो। सिम लेना भी इजी है, ई सिम यू विल गेट, and at the airport counter, in the airport only there is a counter for the SIM card. We took cables and wireless something it was. हाँ, वहाँ पे बहुत ऑप्शन। Okay, so now jump into the next topic which is accommodations, जो मेरा favorite topic है, जिसका चार्ज मेरे हाथ में होता है मैं कोई भी ट्रिप करती हूँ। So accommodations, so Not first, my yeah, it's cup of I choose it, I decided, it's my cup of tea. So ये वीजा और ये सब सिम कार्ड ये सब ये ध्यान रखता है, और मैं सिर्फ क्योंकि मेरे लिए जहाँ मैं रुक रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं अभी, लेकिन वो अगर मैं बजट में भी कर रही हूँ या फिर मैं बहुत ऐसे पैसे उड़ाने वाले लग्जरी वाले में भी कर रही हूँ, पर मैं जहाँ रुकने वाली हूँ इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी। सो आई टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकोमोडेशन की ये है कि वहाँ पे सी सेशल्स इज एक्सपेंसिव कंट्री, honestly speaking it's not cheap like Thailand, Malaysia, no it's not, it is expensive, so आपको mindfully अपनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों ने जो होटल जो मोस्टली हम लोगों ने ना एयर अपार्टमेंट्स और विलाज लिए थे इंस्टेड ऑफ होटल, बिकॉज हम बिलीव करते हैं उसमें आपको फ्रीडम रहती है, लोकलाइट से आप कनेक्ट कर पाते हो, लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, और दूसरी बात आपको किचन मिलता है तो आप उसमें खाना भी बना सकते हो। तो हमारा मेन वही तुमने था। बहुत बनाया था। हाँ, जो हमने बहुत बनाया है, विल कम टू दैट इन फूड सेक्शन। सो यहाँ पे जो होटल्स हैं और जो एयरबिनबीज हैं या अपार्टमेंट्स हैं महंगे हैं कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। मतलब आपको मैं अगर बोलूँ तो मैक्सिमम अगर आपको बजट में करना है ना मिनिमम तो मिनिमम टू टू मिनिमम मिनिमम सो मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 to 7 thousand तो लगेगा ही लगेगा, नॉट लेस देन दैट पर डे। तो उस हिसाब से अगर आपने एडवांस में किया तो, अगर आप 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा भी पड़ सकता है। तो नाउ जैसे हमने फ्लाइट कराई उसके 2 महीने बाद शायद 4 महीने पहले हमने सारे के सारे accommodations अकोमोडेशंस करा लिए थे। ऑफर्स भी अच्छे मिले। अगोड़ा मोस्टली हम लोगों ने प्रेफर किया बिकॉज अगोड़ा में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और कंपैरेटिवली उसमें प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी कम रेट्स में होते हैं एज कम्पेयर टू अदर साइट्स। और सारी की सारी जो होटल्स जो हमने हर आइलैंड पे बुक करी हैं उसकी लिंक्स मैं दे दूंगी, तो यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, वो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, यू कैन रेफर। टॉपिक विच इज कम्यूट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका चार्ज इनने लिया था, इन्होंने सारी बुकिंग करी थी, तो आप बोलो। Okay. So coming to commute, first I will tell about the inter-island ferry transfer. Like there, as we told, there are three main islands: Mahe and Pralin and Ladik. And to travel between these three islands, there are two options. One is flight and one is ferry. Flight one is too costly, so we avoided that. And coming to ferry, it's not that cheap anyhow. we, we did three in ferry also. You will get three options like what do you say, first class and economy, and one is medium one, upper deck something. इनने फर्स्ट क्लास भाई अमीर आदमी के लिए कराया था, एकदम वीआईपी फर्स्ट क्लास वाला। So for the first one, which was like from Mahe to Ladik, we did a first class one, which costed us around. We'll tell you in the तो expensive section. बजट ट्रिप में हम लोगों ने फेरी फर्स्ट क्लास वाली कराई थी, एसी वाली, ओके। नहीं, just to बट ज्यादा डिफरेंस experience, to नहीं get था the तो हमने because there सोचा was यार, not much experience. So ऐसा था कि फर्स्ट क्लास का और नॉर्मल का इकोनॉमी का 2-3 हज़ार के डिफरेंस था। यू तो कैन टेल द प्राइस, यू नो दैट। इट वाज हम लोग को 16,000 पड़ा था शायद फर्स्ट वाले फेरी का, वीआईपी वाला नॉट एक वीआईपी, वन। फर्स्ट क्लास का, जो प्राले माए टू लादिक था। वो एक्चुअली सबसे लंबा डिस्टेंस है, इट टेक्स अराउंड 1 hour 1.5 hour। उसके बाद हमने किया था लादिक टू प्रालिन, जो 15 मिनट का ही डिस्टेंस है। उसमें उसमें ऐसा था कि फर्स्ट क्लास लो या नॉर्मल सबका एक ही प्राइस था, इट वाज समथिंग 370 यूरोस, तो 2200 ऐसा कुछ पड़ा था। फिर जो लास्ट था फेरी वो था प्रालिन से माए का, क्योंकि हमारे जो इटनरी है उसके हिसाब से हमने वापस माए से ही हम लोग को फ्लाइट लेना था, तो माए आना ही पड़ा। तो वहाँ का हमने इस बार किया था इकोनॉमी वाला, और नॉट मेरी जो इकोनॉमी, हालत अपर हुई डेक। थी ओ भाई, ऊपर बैठ के मुझे फेरी में मुझे जो मोशन सिकनेस हुआ था, मैं पूरे के पूरे ट्रिप में ऐसे बैठी हुई थी कि करा लेता वीआईपी। एक्चुअली वो ऐसा क्या था कि होता, उस टाइम मौसम खराब हो गया था ना शायद, तो मौसम तो खराब था ही, थोड़ा बारिश हो रही थी तो वेव्स बहुत ज्यादा थी, ऊपर से एसी में जब अंदर बैठे होते तो तब पता नहीं चलता आई थिंक, क्योंकि एसी वाला कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, बाहर वाले ही उल्टी करे जा रहे थे।
मेरी जो हालत खराब हुई थी, तो अगर आपको मोशन सिकनेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीआईपी वाला ही कराओ। हाँ, क्योंकि इतना या डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस नहीं हमने है, तो बस ट्राई करने के लिए हमने 3 3-4 हज़ार का ऑप्शन ट्राई डिफरेंस है किए आई थे। थिंक। हाँ, हाँ, ट्रायल एंड ट्रांसफ़र हो गया था। कैट कोकोस करके वहाँ पे फेरी चलती है, सब लिंक्स आपको फेरीज की हमें। फेरिस के हम लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद आगे आपको जो इंटरनल कम्यूट रहता है, जैसे आप माहे में हैं, तो हमने हमने बोला स्टार्टिंग में कि हमने एयरपोर्ट से लैंड करते हमने कार हायर कर लिया था, क्योंकि अगर आप कैब बुक करते हो तो कॉस्टली है वहाँ पे आपका। एयरपोर्ट से होटल जाने का है कि 2-3 हज़ार हो जाता है, तो इससे तीन अच्छा चार आप साढ़े तीन चार। फाइव टू 5,000 to 6,000 फॉर 24 आवर्स यू कैन हायर ए कार। या और हमारे साथ बेबी भी था, तो हमने कार सीट भी उसी में पहले से प्री बुक कर लिया था। तो लादिक में साइकिल चलते हैं, उसका भी चार्जेस है एक्चुअली, लाइक क्योंकि साइकिल एक दिन के लिए कुछ 2,000 रुपये हुए थे। जो साइकिल हायर करना है वो आप ऑन द स्पॉट वहां जाके ही कर सकते हो, हाँ, उसके लिए कोई हायरिंग नहीं है। वो छोटा सा आइलैंड है, तो आप फेरी से जैसे उतरेंगे आपको वो आपके पास आ ही जाएंगे, और वहीं पे ही हार्डली 200 मीटर्स के डिस्टेंस में ही वहाँ प्लेसेस है जहाँ आप साइकिल एंड कर सकते हैं। और एक और चीज मुझे याद आई कि आपको जो एक फेरीज जो बुक कर पाओगे आप 1 महीने पहले ही, एग्जैक्टली अपने ट्रिप के 1 महीने पहले ही कर पाओगे। हाँ, वो आप उससे पहले एडवांस में नहीं क्योंकि कर वो सकते, वो उनके ओपन ही एक गवर्नमेंट महीने पहले। ऑपरेटेड है, तो हाँ, फेरिस हो गया जैसे, और वो जैसे ट्रैवल अथॉराइजेशन फॉर्म था, ये सब उनका गवर्नमेंट ऑपरेटेड थिंग्स है, तो ये आपके ट्रैवलिंग डेट से 1 महीना पहले ही ओपन होते हैं। कार का भी ऐसा है कि आपको पेमेंट उस टाइम नहीं करना होता है, आपको पेमेंट वहाँ पे पहुँच के कार लेने के बाद पेमेंट करना होता है। और तो जो लिंक लिंक हम आपको शेयर करेंगे कार हायर के लिए, आपको सिर्फ अपनी बुकिंग कर देनी है। हाँ, आपको सिर्फ अपना बुक कर देना एडवांस में कार, और पेमेंट आपको वहीं जाके पे करना है, तो गुड, इट्स अ गुड हाँ, डील, एंड राइट? करेंसी मतलब इन यूरोस, लाइक आपको हमने अराउंड 50,000 to 60,000 वी गॉट एक्सचेंज इन यूरोस, एंड हमने वो लिया था क्योंकि कार बुकिंग एंड थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो हमने पहले से बुक किए थे, उनकी पेमेंट वहाँ पे जाके करना था, बट वो यूरोस में था हमारे लिए। अब राइट। वहाँ या तो फिर आप वन मोर थिंग इज़, हमने ये नियो के फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड भी कैरी किया था, जो कि वहाँ के एटीएम में आप पैसे निकाल सकते हो। देयर इज़ अ मिनिमल चार्जेस ऑफ अराउंड 4 to 500 इफ़ यू आर लाइक आप 1000 SCR अराउंड 6,000 इंडियन हम्म। रुपीज़ आप निकाल रहे हैं, तो उसमें 400-500 रुपीज़ का सर्विस चार्ज लगता है वहाँ के एटीएम। और बेस्ट थिंग है कि अगर आप कैश नहीं निकाल रहे हो, तो वो कार्ड आप वहाँ पे हर चीज़ में हर जगह यूज़ कर सकते हो, शॉप में, पेट्रोल पंप में, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट विल बी डन इन देयर करेंसी ओनली। टू बी फ्रैंक मतलब 50,000 के आसपास का हमने यूरोस लिए थे, एंड जो हमने उनकी करेंसी रखी थी, लोकल करेंसी, वो हमने रखी थी अराउंड 2,000 SCR, मतलब 10-12 हज़ार के आसपास राइट, और उनकी हमारे पास करेंसी का नियो था। कार्ड्स तो थे ही। हाँ, सो आई थिंक दैट इज वेल इनफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, विच इज एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज काफी होती हैं यहाँ पे, लेट मी टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट इज क्रिस्टल बोट कायाकिंग होता है, जो कि माहे में होता है या तो लादिक में होता है। माहे में थोड़ा महंगा पड़ा हमें, क्योंकि लादिक में जब हम पहुंचे थे तो वहाँ बारिश हो रही थी, तो हमको नहीं करने मिला। तो 250 SCR वहाँ पे था, लेकिन जो माहे में था वो 500 SCR था, मतलब टोटल डबल। तो आप देख लो, आपको जहाँ सस्ता पड़े वहाँ पे कर लो। मुझे लगता है लादीक में सस्ता था। तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, एकदम क्रिस्टल वाटर में आप क्रिस्टल बोट में कायाकिंग कर रहे हो। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, एंड यू शुड डू इट नाउ। देन सेकेंड है, हम लोगों ने हाफ डे का स्नॉर्कलिंग ट्रिप करा था फ्रॉम लादिक, ओके, लादिक आइलैंड, जो सबसे छोटा वाला आइलैंड है वो। तो वो हमें, उसके प्राइस कितना पड़ा था आशु, उसका एक्सपेंस? उसका जो हमें पड़ा था वो 12,000 पड़ा था, दोनों का मिला के। ठीक है, किया का तो कहीं ऐड नहीं करते रुपये, वो तो बच्ची है। सो 12,000 पड़ा था, तो मतलब समझ लो पर हेड 6,000। और उसमें कुछ नहीं, वो लोग ले जाते हैं बोर्ड में और बस एक ड्रिंक देते हैं पीने के लिए। अगर आपको खाने के साथ ड्रिंक इन द या सेंस फूड, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक छोटी सी बॉटल, और अगर आपको फूड के साथ या बारबेक्यू वगैरह से करना है, एक आइलैंड में भी स्टे करना है, बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। उसकी लिंक जहाँ से हमने बुक कराया था, उसकी लिंक हम शेयर कर देंगे आपको, तो आप अपने हिसाब से फुल डे का भी करा सकते हो, तो फिर एक्चुअली बारबेक्यू वैसा फूड होता भी है करा कि सकते हो। उसमें 2 टाइप के रहते हैं जो एक्टिविटीज, जो गरिमा बोल रही है स्नॉर्कलिंग वाला। वन इज हाफ डे, वन इज फुल डे। हाफ डे में ऐसा होता है कि जो हमने लादिक में किया था वो, अगेन जैसे हमने टोल बोला कि बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, तो देर आर 3 मेन आइलैंड्स फॉर दिस एक्टिविटी। वन इज कोको सिस्टर्स, लाइक स्मॉल सिस्टर, बिग सिस्टर, एंड वन इज फेलिसिट। सो दिस 3 आइलैंड्स में जाके हम लोग को स्नॉर्कलिंग कराते हैं, मतलब हर एक आइलैंड में 3 घंटे का रहता है, हर एक आइलैंड में 1-1 घंटा ऐसा वो लोग स्टॉप करते हैं, स्नॉर्कलिंग करने के लिए देते हैं। इक्विपमेंट्स भी
बेटर है यू कैरी योर ओन। ये जो फुल डे वाला है ना, उसमें कैसा होता है 6 आवर्स होता है, नॉट फुल डे, मतलब नॉट फुल डे 6 आवर्स का होता है। उसमें कैसे होता है कि यहाँ पे कैसे थ्री हमने जो किया था वो सिर्फ स्नॉर्कलिंग था, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के पास ले जाके, आइलैंड्स के अंदर नहीं जाते। बट जो फुल डे वाला रहता है उसमें कैसा है, जो फेलिसिट लास्ट वाला आइलैंड है वहाँ पे अंदर ले जाएंगे, वहाँ पे लोग बारबेक्यू करते हैं, मतलब ऐसा होता है, थोड़ा एक्टिविटीज कहाँ वाला से हो कराया जाता है। था हमने, वो याद है? मैं लिंक अरे शेयर वो करता हूँ, बोट का नाम लेजी बोट स्नॉर्कलिंग करके था। लीजी बोट स्नॉर्कलिंग हाँ करके था। हम लोग तो सारी लिंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसके हिसाब से आप देखो, हर आइलैंड में प्रालिन में भी है इस तरह का स्नॉर्कलिंग हाफ डे और फुल डे ट्रिप। हमने दोनों जगह पे नहीं किया, हमने सिर्फ एक जगह पे किया। एक क्यूरियस आइलैंड है जो प्रालिन से सेम हाफ डे ट्रिप और फुल डे ट्रिप चलती है, सेम है वो। वहाँ पे टोटॉइस का मेन होता है कि देखने जाओ, पर हमने जहाँ भी अकोमोडेशंस किए थे ना, मोस्टली हाँ, उनके सब जगह पास थे। सब जगह वहाँ पे टोटॉइस सब थे। जगह टॉर्टोइजेस हैं बड़े बड़े। अकोमोडेशंस मतलब हमारे विलाज में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतने ओल्डेस्ट और इतने बड़े बड़े टोटॉइस देख लिए थे कि हमने स्पेशली, क्योंकि हमने ऑलरेडी लादिक में वो स्नॉर्कलिंग ट्रिप हाफ डे वाली कर ली, तो वही हाफ डे ट्रिप प्रालिन से हो रही थी क्यूरियस आइलैंड के लिए। तो हमने एक्चुअली, बच्ची बहुत थक जाती तो हमने इसलिए भी अवॉइड किया। और अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स, आप अगर एकदम ही एनर्जेटिक हो, आई डोंट हैव एनी स्मॉल किड, तो आप जरूर करो हाँ, जाके। बट क्योंकि वो उसमें सेम थोड़ा सेम चीज, ट्रैकिंग भी इन्वॉल्व है ट्रैकिंग ऐसा भी थी थोड़ा। उसमें क्यूरियस आइलैंड में जाने की। हम्म, तो हमने सोचा नहीं नहीं, बच्चे के साथ नहीं हो सकता। और वो लगभग 70-80% सेम थिंग थी, स्नॉर्कलिंग एंड आइलैंड हॉपिंग, तो हमने हम्म। अवॉइड करा। वहाँ पे एक फेमस कोकोनट है, कोको डे मेर। ओके। कोकोनट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी टू कट यू आशु, वो कोको de mer की सब ये इस वो ना एक वुमेन पेल्विश से का के शेप का है, बहुत ही अद्भुत दिखने वाला कोको de mer आप कोकोनट। फोटो में देख सकते आप फोटो में देख सकते हो, मैं लगा दूंगी। तो वो बहुत ही अद्भुत सा दिखने वाला है। और आप वो पूरी दुनिया में कोको में जो इस तरह का कोकोनट है, जो वो सिर्फ प्रालीन सेशल्स के आइलैंड में मिलता है, और वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, मतलब अभी वो यूज नहीं कर रहे। और सबसे हैवीएस्ट सीड इन द वर्ल्ड है, हैं। मतलब क्या ही रिच हिस्ट्री है इसकी। एंड इसके जो जंगल भी हैं, जो वो 1000-2000 साल पुराने जंगल्स हैं। और कोकोडमेर का जो बनना भी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आशु बताएगा कैसे बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही पेड़ है, एक पेड़ में वो नारियल आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है कि इट्स ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइक एक मेल है एक फीमेल है। मेल के जो पॉलिजेंस हैं वो पता नहीं, सॉरी मैं गलती टर्म यूज़ कर रहा हूँ, वो जा मतलब बर्ड्स या इनके थ्रू फीमेल के उसमें जाते हैं, फीमेल्स फिर वो वहाँ से फिर कोकोनट बनता है। सो ऐसा है। और ये प्रालिन के सिर्फ दो, प्रालिन के आइलैंड में ही होता है। नेचर इज इनक्रेडिबल। और वहाँ पे भी दो जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। एक है फोर्ट फेर्डिनांड एंड द दूसरा है वैले डी माई। हम लोग फोर्ट फेर्डिनांड हमने प्रेफर नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ी ट्रैकिंग थी एंड बेबी के साथ थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे जो इजीली हो सके, तो वी वेंट टू दिस वैले डी माई। क्योंकि क्या भी है उसको भी गर्मी भी एक्चुअली वहाँ पे एक और थिंग है, क्लाइमेट। बट अभी काफी सही था, लोग जो हाँ, नॉर्मल में जाते हैं वो बहुत गर्मी बहुत होती है गर्मी वहां होती पे, है। हम लोग को ऑनेस्टली इतनी नहीं लगी। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे हम लोग ने फिर इसलिए वैली डे सेलेक्ट किया क्योंकि थोड़ा आराम से था। इट्स वहाँ पे कितने पड़ी थी हम लोगों को, पड़ी थी अराउंड 900 SCR, जो कि होता है अराउंड 5000 के आसपास, 5,000 समझ लो, दो दोनों का लोगों मिला का। के। एंड एक और थिंग है कि वहाँ पे आप जाने से पहले आपको एक ब्राउचर देते हैं जिसमें आपको वहाँ की हिस्ट्री या पूरे बार डिटेल्स पता होती है। बट आपको गाइड करना चाहिए वहाँ पे जो प्रॉपर आपको बता सके हिस्ट्री के हिस्ट्री। बारे में। तो हमने एक गाइड किया था, जो गाइड के चार्जेस बहुत थे, मतलब अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास चार्जेस थे गाइड के। तो हमने एक ग्रुप में गाइड कर लिया था, तो हमें नहीं, 6000 चार्जेस थे गाइड के, तो हमने ग्रुप में किया था तो हमें 3000 पड़ा। तो ऐसा था कि वो 1 आवर का ट्रिप रहता है, 1-1.5 आवर के आसपास का, जिसमें वो अपने को प्रॉपर बताते हैं वो फॉरेस्ट के बारे में, हाउ मतलब कैसे बनता है कोकोडेमेर, एंड एक कल्चर उनका बताते हैं सेशल्स का कि कैसे क्या है। हमें तो पूरा कितना कॉस्ट पड़ा था लगभग, एट पूरा थाउजेंड मिला विद के विद 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 गाइड, हाँ। विद गाइड 8,000 पड़ा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू इज फूड। Yes, so why food is important? Because पेट भरना है, एनर्जी Obviously। चाहिए, इतना सा, वो भी बच्चे के साथ घूमना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई वांट टू शेयर विद यू दैट हमने सबसे जो पैसे बचाए हैं वो फूड में बचाए हैं। ऐसा नहीं कि हम भूखे रह गए थे। भूखे रह गए और हम लोग ऐसे खा नहीं रहे, एकदम कंजूसी करे, ऐसा नहीं है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप
एज आप जानते हो कि सेशल्स अभी पता ही चल गया होगा थोड़ी एक्सपेंसिव है, 6 टाइम मोर देन अवर करेंसी। सो अगर हम 3 टाइम का खाते हैं अगर बाहर फॉर एग्जाम्पल, और उनका कुजीन कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल भी नहीं है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कल्चर, इंडियन कल्चर स्पेशली। इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है। हिस्ट्री एक्चुअली सेशल्स की बहुत ज़्यादा रिच है, अगर आप पढ़ोगे तो पहले फ्रेंच ने राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। उस टाइम पे जो इंडियंस होते थे वो स्लेव्स होते थे, फिर उनके जाने के बाद इंडियंस का काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छे से। और आप जितने भी मार्ट्स देखोगे, जितने भी ग्रॉसरी शॉप्स देखोगे, सारे इंडियंस हैं, मोस्टली फ्रॉम केरला एंड चेन्नई। सो वेरी रिच हिस्ट्री। सो इंडियन कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है सेशल्स, फूड स्पेशली। सो आप ऐसे कुछ मिस नहीं करने वाले कि अरे ये कभी टेस्ट किया नहीं है ऐसा टाइप, मुझे जितना लगा। व्हाट अबाउट यू? हम्म, नॉन वेज में भी हाँ मतलब फ्राइड राइस, रीजनेबल नूडल्स, प्राइस में। हाँ मतलब हमने रेस्टोरेंट में भी खाया है, हमने नॉर्मल से टेक अवेज, टेक अवेज भी लिए, एंड आई थिंक इट वाज टेस्ट विल गेट मोर और लेस काइंड ऑफ सिमिलर टू इंडिया। सिमिलर। हाँ। और वन मोर थिंग आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, तो आप बड़े बड़े होटल्स में ऐसे 1-2 बार खाओ, इट्स गुड। बट आप रोज रोज रेस्टोरेंट में जाके खाओगे दैट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने क्या किया था कि पहली बात, फूड से हम इंडिया से ही पैकिंग करके इस तरह से गए थे कि हमने बहुत सारे रेडी टू ईट चीज़ें खरीदी थी, दाल मखनी, बिरयानी, और वो सारे के ब्रांड्स के लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने अमेजोन से बहुत कुछ ऑर्डर किया था। इवन आई वुड से पोहा, उपमा, इवन बहुत सारी चीज़ें हम लेके गए थे। किया के लिए बहुत सारी रेडी टू ईट पैनकेक्स, डोसा, तो वो डोसा किया था तो हम खा रहे थे। और मतलब आई वुड सजेस्ट कि यू नो थोड़े मैं ले जाना भूल गई थी, रखा ले जाना भूल गई, स्पाइसेस ले जाओ थोड़े, थोड़ा कुछ जैसे देखो मोस्टली हर अच्छे मतलब आप अगर विला कर रहे हो या एयरबिनबी कर रहे हो तो उसमें नमक और चीनी देते हैं, पर अगर नहीं दिया तो थोड़ा थोड़ा चीनी नमक रख सकते हो। इट्स बिकॉज ग्रॉसरी भी शॉपिंग कर रहे हो तो इट इज 6 मोर, मतलब 6x ज़्यादा है। तो आप अगर बेसिक चीज़ें कुछ ले जाना चाहते हो, थोड़ा सा घी, स्पाइसेस, तो आप ले जाओ अपने हिसाब से। एंड रेडी टू ईट मैंने काफ़ी चीज़ें ली थी, ऑन द गो वाली भी चीज़ें मैंने काफ़ी ऑर्डर की थी। जैसे मैंने प्रोटीन बार्स हम लोग बहुत लगे थे, आशु बहुत बोल रहा था अरे इतना सब लेने की क्या जरूरत है, क्यों ऑर्डर करिए, और सबसे ज्यादा प्रोटीन बार्स नहीं खाए हैं, भूख लग रही, बिकॉज आप ऑन द गो हो और आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, आप कहीं ऑन द वे हो और भूख लग रही है, तो क्या करोगे, आपके पास कुछ होना चाहिए बैग में खाने के लिए। तो हमने बहुत सारे प्रोटीन बार्स, किया के लिए मैंने स्लब फार्म से बहुत सारे ऐसे टीथिंग वाले स्नैक्स लेके गई थी मैं। सो अपने लिए भी, हम लोग के लिए भी स्नैक्स लेके गई थी, तो काफी अच्छा, हम लोग को मतलब भूख लगती थी तो हम ऐसे भूखे नहीं रहते थे, हम लोग खा लेते थे चीजें। सो फूड के लिए चलो ये चीज हो गई, हमने रेडी टू ईट वाला काफी खाना लेके गए थे, सारी लिंक्स शेयर कर दूंगी। दूसरी बात ये कि हमने मोस्टली जो ब्रेकफास्ट है हमने खुद बनाए हाँ। रिजॉर्ट्स में, और सॉरी अब हमारे जो भी विला था या हमारा जो भी अपार्टमेंट्स थे, और हमने खुद बनाए। सुबह उठते थे आराम से, एक दिन पहले जो भी आइलैंड में हम आए, सबसे पहले हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। और कौन से जो बहुत फेमस वहाँ पे है, एसटीसी करके, हाँ एसटीसी एस टी करके सी। बहुत सारे मार्ट्स होते हैं एसटीसी नाम से, तो वहाँ पे का सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्रोसरी शॉप में नहीं मिलेगा। हम सबसे पहले एग्स खरीदते थे, ब्रेड्स खरीदते थे, बटर खरीद लिया, मिल्क खरीद लिया, दही खरीद लिया। और उनके किचन में अगर आप एयरबिनबी या विला या इस तरह का अपार्टमेंट करो तो सब चीज़ें रहती हैं चाय बनाने के लिए, आपका कुछ भी कटलरीज, ओवन, यू नो टोस्टर, सब कुछ जो किचन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम होने चाहिए सब होते हैं वहाँ पे। तो आपको कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे, सब कुछ रहता है, बस आपको ग्रॉसरी लेके आनी है। तो हमने वही किया, मोस्टली मैं कभी एग फ्राई, ऑमलेट, या सनी सनी साइड, सब कुछ हम बना के, कॉफ़ी, चाय, हमें एक बहुत ही वनीला अच्छी चाय मैंने ग्रॉसरी शॉप की सेशल से की थी। आशु को मैंने अपने हाथ की चाय बना के पिलाई है, मतलब, और वो भी एकदम हमारी वाली चाय, ऐसा नहीं कि डिप वाली। तो आपको सब चीज़ वहाँ पे मिलेगी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आप पैसे बचा सकते हो कि आप समझो अगर एक टाइम आप खाने जा रहे हो तो मतलब आपको 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, मिनिमम 5 हज़ार तक तो हो ही जाएगा। और अगर आप एक टाइम का बचा रहे हो तो नाश्ता सुबह आप चिली करके करना चाह रहे हो आराम से, तो हम लोग आराम से, हमारा विला बहुत ब्यूटीफुल होता था, विद व्यू होता था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट घर पे ही करते थे अपने विला पे। देन दोपहर को मोस्टली हम घूम रहे हैं बाहर, तो मोस्टली ये तो हमने टेक अवे ले लिया। टेक अवे इज चीपर देन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। देखो हाँ, आप हमने
टेक अवे मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि मैंने टेक अवे रेस्टोरेंट से भी लिए हैं, और टेक अवे वहाँ पे आपको, आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं कार से, आपको बहुत सारे दिखेंगे छोटे छोटे ऐसे बीच साइड में, जिसमें ट्रक टाइप खड़े हैं। हाँ ट्रक टाइप से, तो आप मैंने वहाँ से भी ट्राई किया, दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ हाइजीन ठीक है, हाइजीन एवरीथिंग। है, सब कुछ है। प्राइस में कंपेयर करूँ तो आप, अगर आप दो लोगों का रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं तो एक टाइम का खर्चा ऑलमोस्ट 4 से 5,000 तक आता है नॉर्मल खाने का, ऐसा टू मच और लैविश अगर हम भी नहीं। टेक अवे ले रहे हैं और तो हम टेक अवे ले रहे हैं तो 1,000 में आपको दोनों का आ जाएगा, एक वेज नॉन वेज, मैं नॉन वेज खा रहा था, वो वेज है, तो हम एक वेज एक नॉन वेज ले रहे थे, समझ तो लो हम नॉन लोग वेज है का, दोनों तो 2000 में हो जाएगा। नहीं दोनों का नॉन वेज भी है तो भी आपका 1,000-1,200 रुपये लगेगा। हमने एक माहिक महक करके बीच साइड रेस्टोरेंट है। माही में महक करके वो मैं लिंक शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। वो एक्सपीरियंस लिया, ऐसा नहीं कि हर एक्सपीरियंस हमने लिया पर रोज रोज नहीं। तो हमने एक दिन वहाँ पे खाया था। और रात में मोस्टली कभी हम टेक अवे ले लेते थे, कभी हम लोग जो रेडी टू ईट बिरयानी, और एक्चुअली इतनी अच्छी बिरयानी थी कि जो मैं रेडी टू ईट वाली बिरयानी, दाल दाल मखनी सब मखनी, ले गई थी। उस हाँ। जो ब्रांड है, उसका ब्रांड का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें बहुत कुछ था, छोले, वो तो मैं और सब तो ले नहीं गई। मैंने सोचा चलो इस ट्रिप में ट्राई करते हैं, अगर अच्छा निकला तो नेक्स्ट ट्रिप में बहुत सारे ले जाएंगे। एक अच्छा, इंडियन। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सबसे महंगा है वहाँ पे पानी। आहा, आस्क मी अबाउट इट, आस्क मी सॉरी। अबाउट इट। तो वहाँ है कैसे कि आइलैंड से घिरा हुआ, सॉरी समुद्र से घिरा हुआ है, इट्स इन इंडियन ओशन ओनली, एंड वहाँ पे पानी इज लाइक, एक बॉटल आपको अराउंड 200 के आसपास पड़ती है 1 लीटर की, अगर आप 1 लीटर की ले रहे हैं। आपको प्रॉपर्टीज में भी जल्दी पानी नहीं देते वहाँ पे। हमें से फर्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी में शायद पानी की बॉटल मिली थी। तो हम क्या करते थे, प्रीशियस है पानी की वैल्यू, मुझे सेशल्स में जाके पता चाहिए सीरियसली, ब्रो। तो आपका ऐसा है कि 1 लीटर पानी की बॉटल लेंगे तो आपको अराउंड 10 to 15 SCR या वही 100-200 के आसपास पड़ रही है। और इससे अच्छा है, बेटर आप एक 5 लीटर का कैन ले लें, क्योंकि अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में रुक सकते हैं, या प्रॉपर्टी में आप रुके हैं तो वहाँ पे आपको 1-2 दिन वो इजीली चल जाता है। आई थिंक वो मच बेटर ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रुक रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा 10-12 लीटर की कैन आती है, वो भी ले सकते हैं, वो बेटर, ज़्यादा सो बेटर द है। मेन पॉइंट इज यू कैन सेव योर मनी इन फूड। हमें वहाँ की लोकल चीजें खानी है, वहाँ का लोकल कुजीन एंजॉय करना है, बट वी कैन बी माइंडफुल ऑल्सो कि चलो दिन में एक बार घर पे बना लिया, एक बार टेक अवे ले लिया, एक दिन कुछ रेस्टोरेंट में खा अच्छे लिया। रेस्टोरेंट में खा लिया। फिर मोस्टली रात में अगर थक गए, वही तो रेडी टू ईट वाले में सिर्फ ओवन में रखना है, और दाल मखनी बैठ के सेशल्स में खा रहे हैं भाई हम लोग। सो वी प्लान एवरीथिंग आउट, सो यू कैन सेव योर मनी इन फूड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे कि कितना टोटल एक्सपेंस लगा है हमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक एक करके बताते हैं। फ्लाइट में आप ऑलरेडी टोल्ड के हमने 6 मंथ पहले करा लिया था, तो हमें पड़ा था 75K। हम राउंड फिगर बता रहे हैं, मुझे एक्चुअली पड़ा था 73 समथिंग समथिंग समथिंग, बट हम 1-2 हज़ार आगे पीछे करके बता रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो 75K मान के चलो, अगर आप 6 मंथ पहले करा रहे हो। देन कम्स टू कार रेंट। कार रेंट जो है वो आपको पूरे के पूरे, अगर आप 6 नाइट्स के लिए जा रहे हो, 6 नाइट्स के लिए, तो उसमें से हमने 3 दिन के मतलब लिए कार रेंट प्लस बाइक सब मिला के हम लोग को 30 के आसपास पड़ा था। 30K के हाँ, आसपास पड़ा था। होटल हम लोग को 50K के आसपास पड़े थे 6 नाइट्स के लिए। होटल ओके, थोड़े महंगे हो, होटल थोड़े और महंगे हमने हैं। जबकि ऑलमोस्ट ट्राई किया था कि जितना कम में अच्छे मिल सके वो चूज करने की कोशिश किया था। एग्जैक्टली exactly. एक सोचो, प्रॉपर्टी लास्ट की हमने देखी 4 महीने तो। पहले कराने के बावजूद भी हमें 50K होटल 6 नाइट्स के लिए पड़े हैं। तो जस्ट बी अवेयर and make sure that you book in advance. I'm repeating again and again. फेरी की हमें पड़े थे 30K, 30,000 जो फेरीज, इंटर आइलैंड इंटर ट्रांसफर्स के आइलैंड लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए। देन हम लोग को एक्टिविटीज के लिए, देखो वो आपके ऊपर है, ये आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हो। हमें 25K पड़े टोटल। फूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमें फूड में 25K, वो भी हमने ज्यादा ही लगाया, पर हमने लगाया 25K। तो हमें टोटल जो पड़ा है वो हमें पड़ा है आई थिंक 22,50,000। व्हाट डू यू थिंक? इट इज एंड इट्स अप्रॉक्स टू रियली दैट। लेस। उसमें शॉपिंग भी इंक्लूडेड है थोड़ा बहुत, शॉपिंग भी मतलब। इंक्लूडेड है, हमने 15K शॉपिंग एक्स्ट्रा लगा के करी है। हाँ, तो हम जो एक चीज़ और थी, अब जो बताना बोलोगे शॉपिंग रिगार्डिंग, वो हमने शॉपिंग किया, जो अगर आप जैसे आप जा रहे हैं तो आते वक्त ऑब्वियसली फ्रेंड्स फैमिलीज़ के लिए सोवेनिर्स कुछ ना कुछ तो लेते आएंगे। तो उसके लिए आपको माहे में एक प्लेस है जो कैपिटल है माहे का, विक्टोरिया। वहाँ पे एक मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट, या इसको बोलते हैं सेल्विन क्लार्क मार्केट भी।
वहाँ पे आप सोवेनियर के लिए फेमस है वो प्लेस, वहाँ से सोवेनियर ले सकते हैं। रीजनेबल प्राइसेस तो नहीं शॉपिंग का बोलूँगा, एक बट मैं हाँ प्राइसेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉपिंग का मार्केट का नाम लिख हाँ, देंगे। देखो बहुत कम है ये, मोस्टली लोग 4-4 लाख उड़ा के आते हैं मालदीव्स एंड सेशल्स में। सी मालदीव्स और सेशल्स का मतलब एक्सपेंस मामले में सेम ही है लगभग। हमें खुद लगा था कि 3 लाख तक तो पहुंच जाएगा, बट वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, हम 2.5 लाख में निपट गए बल्कि हम मैंने विद कि बेबी, हाँ। विद इफ बेबी अगर अबाउट इट, क्योंकि इवन हम वी हैड एक्टिविटी ड्रिंक्स ज़्यादा आल्सो, करते शायद। यू नो, फूड में हमने ड्रिंक्स भी ऐड करी है। So now coming to the next point, which is I think last packing. अब पैकिंग कैसे करनी है? सी बहुत सारे आप लोग बीचेस में ही रहने वाले हो मोस्टली टाइम पे, तो मेक श्योर आप सनस्क्रीन लेके जाओ। अगर बीच आप वेरी कंपल्सरी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो भाई आप तप जाओगे, पूरे जल जाओगे, तो भर भर के लोशन और सनस्क्रीन के तो काफी भर भर के लेके जाओ। अगर किसी को एलर्जी है सी वाटर से तो वो भी एक आते हैं ट्यूब्स वगैरह, तो वो लेके जाओ। हम लोग सी सैंड मैट्स आती हैं हम्म। बिछाने के लिए, तो वो सैंड मैट्स लेके गए थे। एंड हम लोग ऐसे गॉगल्स आप लेके जाओ, टोपियां लेके क्या जाओ, बोलते, टोपियाँ कैप्स क्या बोलते के हैं, स्विमिंग कैप। स्विमिंग कैप्स और नॉर्मल धूप से बचने वाली कैप भी, भाई बहुत धूप होती है सूट। और स्नॉर्कलिंग वाला अगर मैंने आपको बताया कि खुद का किट लेके जाओ बेटर है, हम नहीं लेके गए थे बेवकूफ को जैसे आप लेके जाओ। एंड सॉफ्ट। बच्चे के साथ जा रहे हो तो खूब सारे बच्चे के स्नैक्स लेके जाओ, क्योंकि बच्चा कभी भी रोने लगेगा, कुछ भी होने लगेगा, उसको भूख लगने लगेगी, आप ऑन द वे हो, गाड़ी में हो, तुरंत खाना नहीं बना सकते, तो स्नैक्स इज इम्पोर्टेंट, तो स्नैक्स भी लेके जाओ बच्चे के। आपको पर पर्सन 30 केजी अलाउड रहता है, जो आप इन फ्लाइट में ले जा सकते हैं लगेज, और बेबी का 10 केजी अलाउड रहता है। हाँ, कैमरा लेके जाओ, बिकॉज क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है यार वहाँ पे। और आपने जैसे जैसे चल ही रहे हो, मतलब सी शोर में ही आपको फिशेस दिख जाएगी। मेडिकल किट, सब चीज की दवाई ले जाओ, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर दर्द, बुखार, जुकाम, मोशन सिकनेस, प्लीज डू कैरी मेडिकल किट विद यू, बिकॉज यू नेवर नो, यू गोइंग आउट ऑफ कंट्री एंड यू नेवर नो किसकी कब की जरूरत पड़ जाए। ऑल्सो सेशल्स का तापमान जो है इधर उधर होता रहता है, बारिश कभी होती है, एकदम से धूप निकल आती है, एकदम से बारिश हो जाती है इन सेकेंड्स, इन मिनट्स। सो मेक श्योर दैट आप रेनकोट और अम्ब्रेला भी लेके जाओ, इट्स वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंडियन चार्जिंग पिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती सब जगह पे, तो एक आप यू कैन कैरी यूनिवर्सल वेरी ट्रैवल वेरी गुड अडॉप्टर, पॉइंट। मेरे तो यूनिवर्सल विश्वास ट्रैवल ही नहीं था ये अडॉप्टर। लेके आया था, मुझे तो ये होपलेस लग रहा था कि तो नहीं लेके आया होगा, पर ये लेके आया था भाई, सब चीजें टॉर्च वॉर्च सब लेके आया था। यस, तो आप कहीं भी अटक सकते हो, कुछ चीज हाँ, आप क्योंकि वहाँ आउट पे ऑफ कंट्री सनसेट जा रहे हो, जल्दी हो जाता है, ऑलमोस्ट एट अराउंड 6-6:30 आपको टॉर्च भी सनसेट हो लेके जाता जाओ। है। तो जैसे आप बीच से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बीच के आसपास थोड़ा अंदर हो जाता है। और अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो बच्चों की जो बीच सैंड बीच में खेलने वाले खिलौने होते हैं वो आप जरूर लेके जाओ। दे एंजॉय, एक्चुअली एंजॉय, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2-3 days तो दे एंजॉय, देन दे गेट बोर्ड एंड देन दे डू अदर स्टफ्स, वो अलग चीज है। बट हाँ, वो लेके जाओ, दे विल बी एंगेज्ड एंड दे विल एंजॉय। जो रहते हैं काफी चीज रहते हैं, तो इटनरी जो हमने बनाई थी, अब जिस हिसाब से हमने फॉलो की चीज़ें, वो आपको उसका लिंक भी हम एक्सेल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक्सपेंस का तो देखा कैसा है, आप 4-5 लाख में भी कर सकते हो, आप 2.5-3 लाख में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट हमने कोशिश की कि हम भी इंजॉय, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही से कंजूसी से जाए, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, हमने माइंडफुली एक्सपेंस किया आई थिंक। So guys, I think we are done, and thank you for watching this video, and I hope this is useful for you. We desperately wanted to make this video together because when we were planning this trip, we हम लोग को कोई ढंग का वीडियो सेशल्स के ट्रिप के रिलेटेड नहीं मिला। व्लॉग्स मिले जो कि यूजफुल इतने नहीं थे आगे पीछे। व्लॉग से याद आया, हमारे व्लॉग्स अब स्टार्ट होंगे आफ्टर दिस वीडियो। वी वांटेड टू फर्स्ट इन्फॉर्म यू अबाउट एवरीथिंग, एंड देन आपको व्लॉग्स भी समझ में आएंगे आगे के में, जो मे बी फ्यूचर में अभी प्लान कर रहे हो और आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम लोग वही बोलेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब And एंड keep on प्लीज लीव ए watching. कमेंट। Thank you for watching. We'll meet soon again in vlogs, Seychelles vlogs. Bye bye. Take care. प्लीज। Peace out.